was having some work, so I have taken the leave. यही भी पढ़ा ओ मेरी क्लास में थे आप? अच्छा ठीक है, तो आप कीजिए, मैं चले जाती हूँ लैब में, लाइब्रेरी में। हाँ आप कुछ कीजिए, कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ हाँ कीजिए कीजिए सर। आप अब कल क्लास 5 ही नहीं गए थे ना? उसमें नहीं गए। अच्छा okay beta, so who will start today? Who will read? Tejas, I think you read the book beta. Start today. We have read Vinayak, Ganesh Chaturthi, and then Navratri also. From the next topic you start. Tejas, unmute first, unmute yourself. Okay, let me give the command. Okay beta, Tejas, let me unmute yourself. Unmute you. Where is Tejas? Okay Tejas, unmute yourself. मैम ईद उल फितर से ना? हाँ बेटा. ईद उल फितर presented by Vivekanand House. The house captain narrated Eid ul-Fitr is celebrated by Muslims at the end of Ramadan, the 9th lunar month. Ramadan is a long month, fascinating when Muslims Fascinated, not beta, fasting. Tejas, it's fasting. Okay, fasting. जो मम्मी आपकी उपवास करती है ना, भूखे रहते हैं ना हम लोग, दैट इज फास्टिंग. फैसिनेटेड नहीं है बेटा, देखो FASTING है. Salat, prayers, recite the Quran, follow good behavior, and donate for the needy. Eid ul-Fitr is a day of joy and thanksgiving. It is also a day of forgiving and forgetting ill feelings towards others. The family elders give Eid presents for or money to the youngsters as blessings. Okay, thank you so much. Wait. Okay, so children, I will tell you some words to underline. Okay, and you have to write that words in your. You can write in the homework copy. Okay, all these words, not in the CWs. In CW, you will write only 10. In the homework, you write these difficult words. Okay, you will get holiday homework also. So write these difficult words in your homework copy. तो summer vacation का भी work हो जाएगा और class work भी हो जाएगा. ठीक है बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? जो अभी बुक में whatever the spelling I will tell you to underline, you have to write that in the HW copy. Clear? Okay, just let me unmute some of you. Wait. You people are looking so sweet. Happy to see your faces. Anushka, just unmute yourself, beta. Arundhati, Salvi, where she is? Abni. Mayank. Okay, this much is enough. 2, 3 only unmuted. Okay, let me go to. Where is Lakshmi? Why she's not unmuting? Rishu, unmute yourself. Rishu, see the command beta on your mic. Salvi, you too see the command beta. I don't know why you will not able to unmute. Suryans, 64B. Yes, ma'am.
स्मिता. Yes, ma'am. Okay, chalo. This much is enough. Okay, now I'm telling some of the spellings. Okay, just you will underline. Okay, beta. You come to the first page, page number 18. Come to the first page. Okay. First paragraph. Gaiety. G-A-I-E-T-Y. First page, page number 18. Page number 18. Indian culture, just above the Indian culture, you have a spelling G-A-I-E-T-Y. Gaiety. Gaiety का मतलब होता है उन्माद, उल्लास. जब भी आप कोई फंक्शन करते हो तो आप कितने खुश होते हो. घर में जब दिवाली हो या छोटे बेबी का बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो, यू एंजॉय अ लॉट, तो दैट इज कॉल्ड gaiety. पूरा खुश होना. ठीक है, क्लियर? Ma'am. हाँ बेटा. हाँ, अच्छा मैं स्पेलिंग टाइप कर देती हूँ. ओके वेट, आई एम जस्ट टाइपिंग द स्पेलिंग ऑल्सो. पेज नंबर 18. Yes, ma'am. इंडियन कल्चर के जस्ट ऊपर में है बेटा. Okay, ma'am. ठीक है, ये Yes, स्पेलिंग है. ma'am. ओके चलो, नाउ कम टू द सेकंड. इन द सेम पेज you come to the last line, inaugurated. Ma'am, ये गेटी. Ma'am. हाँ हाँ बेटा. Ma'am, ये गेटी. Ma'am, गेटी हाँ को गेटी. underline करें. हाँ अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से. Yes, ma'am. हो गया. inaugurated. अब लास्ट लाइन में आइए. डिलीवर्ड द वेलकम स्पीच के जस्ट ऊपर में देखिए inaugurated. जब भी किसी फंक्शन को कोई चीफ गेस्ट आके लैंप वगैरह लगाते हैं या रिबन काटते हैं, उसको इनॉग्रेशन बोलते हैं बेटा जी. प्रोग्राम का शुरुआत करना. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ओके. अब उसी पेज में आप इनॉग्रेटेड के जस्ट ऊपर में जाओ. कॉस्ट्यूम और प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके. कॉस्ट्यूम जो ड्रेस आप लोग पहनते हैं, कॉस्ट्यूम समझ रहे हो ना? जो भी डांस ड्रामा होता है उसमें हम लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं. Yes, ma'am. ओके, दैट्स ग्रेट. और उसी लाइन में बेटा स्क्रिप्ट है, प्रेजेंटेशन भी है. हाँ सालवी बोलो. ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को भी करना है. हाँ, प्रेजेंटेशन को, स्क्रिप्ट को, कॉस्ट्यूम को. हो गया. This is a very big, not very big, big chapter with lots of information. Read this thrice and more than thrice. Okay, 3 बार से ज्यादा आप इसको पढ़िएगा घर पे बेटा. और reading, I just want command. Some of you don't have the command on reading. Okay, अभी Tejas has read. He has not read properly. Okay, so have you done this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now come to the next page. Page number 18 पे आ जाइए सभी लोग. 19. सॉरी, हाँ पेज नंबर 19. यस बेटा 19. गणेश चतुर्थी में 5th लाइन, 1 2 3 4 5, हाँ 6th लाइन में ऑब्स्टिकल्स देखो दिख रहा होगा. काउंटिंग करो ऊपर से. 6th लाइन में ऑब्स्टिकल्स दिख रहा होगा आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ऑब्स्टिकल्स, हाँ उसको अंडरलाइन करो बेटा. ऑब्स्टिकल्स का ma'am, मतलब ठीक है. होता है प्रॉब्लम, विघ्न. ओके, ठीक है. अब आप लोग इमेज का मतलब आइडल समझते हो? IDOLS, आइडल्स. Yes, वो ma'am. मूर्ति, हाँ मूर्ति को बोलते हैं बेटा. आइडल्स ऑफ गणपति. आप भी जब सरस्वती पूजा होता है या दिवाली पूजा में लाते हो ना लक्ष्मी और गणेश को अपने घर, मूर्ति खरीदने जाते हो मार्केट में, दैट इज आइडल्स. उसके और नीचे में आओ. वर्शिप्ड दिख रहा है? वर्शिप्ड. Yes, ma'am. यस, आई होप आप सभी कर पा रहे होंगे. वर्शिप यानी पूजा करना. ठीक है. वर्शिप के नीचे वाले लाइन में आइए. आफ्टर द सेलिब्रेशन द इमेजेस वेर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन. प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है. ठीक है, आप इसको भी अंडरलाइन कीजिए बच्चों. हो गया. हो गया, दैट्स ग्रेट. ओके,
अब डू यू नो में देखो एक इनकलकेटिंग करके स्पेलिंग दिख रहा है। हाँ, डू यू नो में बाल गंगाधर तिलक के Yes, जस्ट ma'am. नीचे। ओके, इनकलकेटिंग का मतलब होता है बेटा, हाँ, इनकलकेटिंग का मतलब होता है जैसे आपके मम्मी पापा या टीचर्स आप में गुड हैबिट्स इनकलकेट करते हैं, है ना, मतलब रोपित करना, जैसे हम पौधे को लगाते हैं ना, उस तरह से इनकलकेटिंग वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, सो नाउ या अब पेज नंबर 19 में जहां पे 19 लिखा हुआ है, नीचे से जाइएगा, नीचे से सेकंड लाइन में वेंचर आपको दिख रहा होगा, VENTURES, वेंचर्स। वेंचर्स दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके, वेंचर्स का मतलब होता है बेटा, जैसे दिवाली के समय में हम लोग किसी चीज का नया शुरुआत करते हैं, या नवरात्रि में, है ना, Ma'am, बहुत venture सारी। का है? क्या बेटा? Ma'am, where is the venture? वेंचर्स 19 जहां पे लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 19, पिंक में Yes, जहां ma'am. 19 लिखा हुआ है उसके ऊपर जाइए, सेकंड लाइन में, नीचे से काउंट करोगे, नीचे से काउंट करो सेकंड लाइन। 1, 2. हाँ, मैम दिख गया. दिख गया ना, गुड। अब वेंचर के जस्ट ऊपर वाले लाइन में देखो बेटा, ऑस्पिशियस है। Yes, ma'am. ऑस्पिशियस, हाँ, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ समय। ओके, नवरात्रि हो गया, उस समय घरों में शुभ काम होते हैं, कोई जमीन जमीन लेते हैं, मम्मी लोग गोल्ड का खरीदारी करती है, बच्चों का नाम रखा जाता है, छोटे बच्चों का। ओके, जस्ट लाइक इट्स हैपन। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने कर लिया। आई होप यू हैव पीपल डन। Yes, ma'am. ओके बेटा, नाउ कम टू पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में आ जाओ सर। हैव यू ओपन द पेज नंबर 20? Yes, ma'am. जहां पे आपको स्नेल, हाँ, डू यू नो में स्नेल का फोटो दिख रहा है ना बेटा, स्नेल का फोटो। Yes, ma'am. उसी से आपको लेफ्ट साइड में इमर्ज्ड दिखेगा, राइट साइड में इमर्ज देखो, IMMERSED, इमर्ज्ड। इमर्ज का मतलब जब हम लोग मूर्ति को पानी में डाल देते हैं, विसर्जन Yes, होता है ना, ma'am. इमर्ज देखिए आप लोग को। Yes, ma'am. ओके, नाइस। अब बेटा विक्ट्री में भी आप और स्पेक्टेटर्स दिख रहे हैं, इमर्ज के जस्ट नीचे में आपको स्पेक्टेटर दिख रहा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, स्पेक्टेटर का मतलब होता है द पर्सन हु स्पीक फ्रॉम द स्टेज, not from the stage. If we speaking, you can consider me spectator also, because I am talking to you, I am declaring something, I am telling you something, so that is called spectator, the person who speaks. Okay, Okay, ma'am. ठीक है बेटा। अब नवरात्रि और दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा, इस लाइन के नीचे में रावणा के बगल में आपको इफिगिस दिख रहा है। Yes, ma'am. हाँ, दैट्स ग्रेट। इफिगिस का मतलब होता है बेटा, Yes, ma'am. जो पुतला होता है ना, रावण कुंभकर्ण का पुतला, इसको हिंदी में पुतला बोलते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, चलो, so hope you have understood this. Now come to Eid ul Fitr. Okay, I am reading, okay, because we have less time. I will read, I will explain. Okay, ठीक है। Okay, ma'am. सानवी, if हाँ बेटा बोलो, किनको बोलना है? अरुंधति बोलो। मैम प्रीति की मैम मंडे टेस्ट नहीं, मंडे टेस्ट अभी नहीं बता सकते कुछ, अभी होगा कि नहीं, अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा बेटा हम संडे को मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओके, मैम अभी हम तुम, लोगों का जो ऐ मालिक तेरे बंदे हम वो गाना कब होगा? नहीं हो रहा है अभी, नहीं होगा। नहीं हो रहा अभी। देखो गीता मैम क्या डिसाइड करते हैं बेटा, हमारे सीसीए इंचार्ज, आपको सब इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। ओके, गर्मी छुट्टी का लिस्ट मैंने भेज दिया, 13 तारीख से गर्मी छुट्टी आपकी हो जाएगी, अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेगी, ठीक है। सो व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन विल कम। मैम हाँ बेटा बोलो। नहीं मैम समर वेकेशन सालवी बोलो, जोर से नहीं आ। समर हाँ, वेकेशन का 13 तारीख से कल डाला तो मैंने छुट्टी वाला लिस्ट डाला ना, उसको हाँ होमवर्क बोलो। मिलेगा मैम समर वेकेशन का? एकदम मिलेगा बेटा, भर भर के देंगे, चिंता नहीं करो। मैम अब चुप, अब चुप, दोनों चुप, पढ़ाने दो हमको।
फिर बात करेंगे। चुप। हाँ, तुम्हारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आएगा, अभी एकदम चुप, अभी हमको पढ़ाने दो टॉपिक। अरुंधति है। ओके बेटा, अब मैं पढ़ूं? Have I have the permission to all of you? Yes, ma'am. हाँ, thank you. Sanvi, I would like to talk to you. Let me complete, then I will talk you. Okay, beta? Thank you so much for joining. I thought on that day I have not seen you. Eid ul Fitr presented by Vivekanand House. In our school also we have a Vivekanand House, Blue House. Okay. Yes, ma'am. So that house is now presenting Eid ul Fitr. It's a festival celebrated by Muslim. ये साहिल का फेस्टिवल है। साहिल हम लोग को अगली बार ईदी देगा, ईदी नहीं मतलब वो सेवई ला के खिलाएगा। ओके। और इस बार तो उसने सारी ईदी मम्मी जो गिफ्ट दी अकेले अकेले पचा लिया, चॉकलेट भी हम लोग को नहीं बांटा, तो अगली बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब आएंगे वो। ओके। तो हाउस कैप्टन नरेटेड को भी अंडरलाइन करो बेटा। नरेटेड का मतलब बताना होता है। ओके, एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू द चैप्टर, the house captain was also narrating about the Eid ul Fitr. Okay, so narrated. साहिल बुक में ध्यान दो, मम्मी को से मत बात करो, बुक पे ध्यान दो। Narrated Eid ul Fitr is celebrated by Muslim at the end of Ramadan. Okay, Ramadan उनका एक मंथ का एक फास्ट होता है बेटा, उस मंथ में वो लोग फास्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, होल डे फास्टिंग होती है। उनका कोई टाइम शेड्यूल होता है जिसके समय वो लोग अपना खाना खा के फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। The 9 lunar month Ramadan is a month long fasting. फास्टिंग का मतलब उपवास होता है, जो हम लोग नवरात्रा के समय भी या मंडे सोमवारी आता है तो आपकी मम्मी करती हैं, आप में से भी कुछ करते होंगे। When Muslim offer salalat that is a prayer. Okay, रिसाइट कुरान का मतलब कुरान को पढ़ना। ये मुस्लिम का हॉली बुक है, जैसे हम लोग का गीता और रामायणा है, महाभारत है, उसी तरह से साहिल का जो है ये कुरान उनका हॉली बुक है। हॉली का मतलब पवित्र ग्रंथ, और ये आना चाहिए पढ़ने सबको। ओके, फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट फॉर द नीडी। डोनेट इफ यू वांट टू अंडरलाइन यू कैन डू दैट ऑल्सो। डोनेट का मतलब जैसे आप पैसा वगैरह हम लोग दान करते हैं, कुछ भी कपड़ा आप दान करो टू द नीडी पीपल। ओके, तो इनके कम्युनिटी में ये करते हैं उस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, जब ईद उनका फेस्टिवल, वो उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। ईद उल फितर इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग। जैसे हम दिवाली के समय, दुर्गा पूजा के समय बहुत ज्यादा खुश होते हैं, घर में उमंग उल्लास होता है, उसी समय साहिल पूरा मूड में रहता है। ईद के समय पूरा खेलेगा, पापा से ढेर सारा गिफ्ट लेगा, नया नया ड्रेस पहनेगा। ओके, इट इज ऑल्सो अ डे ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। इस दिन आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपस में गले लगते हैं। इट्स नॉट दैट दे ओनली, आप भी उनके घर में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते भी हैं, हिंदी कम्युनिटी से लोग जाते हैं, गले मिलते हैं। ये उनका फर्स्ट रिचुअल है। जब आप उनके घर पहुंचोगे दे विल हग यू। ओके, वट एवर द इल फीलिंग, मतलब आपके मन में, जैसे कभी मान लो साहिल और अनवी का झगड़ा हो गया या अरुंधति और सालवी लड़ गए, तो मैं बोलती हूँ ना हैंड शेक करो या हग करो, पर दैट इज कि आप भूल गए सारे मतभेद को और आपने एक दूसरे को माफ कर दिया। तो इस मंथ में वो लोग जिनके साथ भी उनके मन में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है या कोई फाइट हो गई या कोई डिस्प्यूट हो गई, दे फॉरगेट इट एंड दे हग ईच अदर। किल फीलिंग आप समझ गए ना, जब भी कोई द्वेष हो मन में। टुवर्ड्स अदर द फैमिली एल्डर्स गिव ईदी जैसे आपको आपके बर्थडे में गिफ्ट्स वगैरह मिलता है ना, उसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में उस दिन वो अपने छोटे को या बड़े को भी, आई डोंट है वो तो मुझे बड़े को देते या नहीं देते, लेकिन छोटे बच्चों को या जो बड़े हैं घर में, वो अपने से छोटे कोई भी, उनको ढेर सारा गिफ्ट, पैसा, वट एवर दे वांट टू गिव दे ऑफर। यंगस्टर, यू कैन अंडरलाइन यंगस्टर एज ब्लेसिंग, प्यार से यंगस्टर को मिलता है। A student dressed in सरारा कमीज एंड दुपट्टा told everyone। अब यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा है बेटा, उसमें एक बच्ची है, उन्होंने ड्रेस पहना है, सरारा कमीज, दुपट्टा ली हुई है। Told everyone that the holy book of Muslim, the Quran, came into existence during the month Prophet Muhammad was chosen by God to be his messenger.
ओके, मैसेंजर का मतलब भगवान ने प्रॉफेट मोहम्मद को संदेश देने के लिए धरती पे आप जाइए और कब। हाँ बेटा बोलो सालवी। आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी। म्यूट हो गए हो क्या? माइक को देखो पहले। आई थिंक यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ। नहीं हो तो मैम हाँ। मैम हम लोग मैम ब्लेसिंग्स को भी अंडरलाइन करेंगे। किसको बेटा? मैम ब्लेसिंग्स मैम यंगस्टर्स के बगल में। नो 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 नीड। ओ ब्लेसिंग का स्पेलिंग आपको याद रहेगा। आप मैसेंजर को अंडरलाइन कर लो, एग्जिस्टेंस को अंडरलाइन कर लो। एग्जिस्टेंस मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब संदेश देने वाला। ओके, प्रोफेट मोहम्मद को संदेश देने के लिए भगवान ने चूज किया। ये हो गया दोनों, आपने कर लिया एग्जिस्टेंस एंड मैसेंजर। यस ओके, मैम। श्रेया को नींद आ रही है बेटा, श्रेया। ओके, मोहम्मद आपने मैसेंजर एग्जिस्टेंस EXISTENC, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर में एग्जिस्टेंस दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, अब मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेने दो, नहीं तो फिर हम बात करते रह जाएंगे आप लोग से और क्लास बीच में एंड हो जाता है 40 मिनट्स के बाद, तो फिर अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। जस्ट वेट, लेट मी टेक दिस स्क्रीन शॉट। ओके, सो नाउ कम टू द ओनम। अब हम लोग ओनम फेस्टिवल पे आते हैं, ठीक है? साउथ इंडिया चलते हैं। द कार्निवल ऑफ केरला गांधी हाउस। ओके, कार्निवल आपने देखा है, वहां पे प्रोसेशन, भीड़ में जुलूस निकलता है विद सो मेनी थिंग्स। लोग हंसते हुए गाते, कुछ उसको क्या अपने बॉडी पे कुछ भी डेकोरेट करके डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स में क्लाउन्स का, तो दैट इज द कार्निवल। ओके, टाइगर डांस में ऐसा करते हैं। गोवा, गोवा में भी ये कार्निवल वगैरह निकलता है। अ गर्ल ड्रेस्ड इन व्हाइट कॉटन साड़ी, आपने देखा होगा साउथ इंडियन लेडीज व्हाइट कॉटन साड़ी विद द गोल्डन बॉर्डर। नरेटेड ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे हमारे यहाँ आप मकर संक्रांति के समय चूड़ा वगैरह खाते हो ना, फर्स्ट टाइम खेतों में जब अनाज पक जाता है। हार्वेस्ट का मतलब जब अनाज पक जाता है और उसको जब ये खेतों से काट के घर में लाया जाता है। ओके, दैट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ओनम एक ऐसा फेस्टिवल है जब केरला में फसल कटती है, घरों में फसल आता है, एट दैट टाइम इट इज सेलिब्रेटेड। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। लेजेंडरी को अंडरलाइन कीजिए। लेजेंडरी का मतलब द पर्सन हु हैज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। ओके, जैसे हम राम को एक आइडल मानते हैं, वो भी लेजेंडरी है। ओके, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड लेजेंडरी। या अमिताभ बच्चन अपने स्पीकिंग स्टाइल के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए, द वे ही स्पीक्स, ही इज कॉल्ड द लेजेंड, वेरी लेजेंडरी पर्सन ऑफ आवर बॉलीवुड। समझ में आ गया बेटा लेजेंडरी का मतलब? यस मैम। ग्रेट, ओके। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। जैसे हमारा ये जो इंग्लिश वाला जो कैलेंडर है जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग जनवरी को फर्स्ट मंथ मानते हैं ना, और हिंदू से चैत होता है ना जी, पहला वाला मंथ हम लोग का। हाँ, हम लोग का हिंदू जो कैलेंडर होता है बेटा, उसमें चैत वो फर्स्ट मंथ होता है। तो उसी तरह से मलयालम कैलेंडर, ये जो वर्ड है ना मलयालम, ये केरला का भाषा है। ओके, लैंग्वेज ऑफ केरला इज मलयालम। ओके, तो चिंगम वो उनका फर्स्ट मंथ है, वो लोग चिंगम बोलते हैं, जैसे हम लोग जनवरी बोलते हैं, वो लोग चिंगम बोलते हैं। ठीक है, उस समय ये ओनम फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, ओके मैम। ऑफ किंग महाबली, जो पिंक वाला बॉक्स दिख रहा है, अब उसमें आ जाइए। द लेजेंड ऑफ किंग महाबली। किंग महाबली वॉज अ डेमोन किंग ऑफ केरला। डेमोन का मतलब ये जो उनका लुक था वो थोड़ा सा राक्षस टाइप वाला था, बड़ा चौड़ा, द वेरी ब्रेव पर्सन ही वाज। हिज रूल वाज अ पीरियड ऑफ गोल्डन एज। गोल्डन एज का मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छा राजा था, ये अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था बेटा। ओके, people were very happy, prosperous and lived in harmony.
जैसे राम भगवान के राज्य में लोग बहुत खुश थे, उसी तरह से केरला के लोग किंग महाबली के राज्य में, इवन दो ही वाज अ डेमन किंग, राक्षस था वो, फिर भी वो लोगों को, अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था। प्रोस्पोरस एंड हैप्पी। ओके, यू कैन अंडरलाइन प्रोस्पोरस। हार्मनी का मतलब मिलजुल के, जैसे आप लोग क्लास में रहते हो ना मिलजुल के, दैट इज कॉल्ड हार्मनी। His rule came to an end when Lord Vishnu took the avatar of a Vamana and pushed King Mahabali deep into the earth to destroy his ego. अब धीरे धीरे वो ना उसमें घमंड आते जा रहा था कि मैं तो अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता हूँ, मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो जब घमंड आ जाता है ना किसी भी इंसान के मन में या दिमाग में, तो फिर उसका सर्वनाश होने लगता है। जैसे रावण को भी घमंड हो गया था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, और उन्हें वो माता सीता का ही अपहरण कर लिया था। तो फिर वो भी उनको राम भगवान ने मार दिया। तो उसी तरह से किंग महाबली को भी, आपने ये स्टोरी सुना होगा या देखा भी होगा, वामना अवतार का, जो एक नाटा सा व्यक्ति और महाबली के सर पे वो पैर रख देने से वो जमीन के अंदर में दब गए। यू मस्ट हैव रेड और हर्ड, यूट्यूब पे देखे होंगे वामना अवतार। आज टाइप करके क्लास के बाद देखिएगा, यू विल गेट द होल स्टोरी। Because of his of love people, the Lord granted King Mahabali a wish that he could visit his kingdom once a year. वो अच्छा राजा था, लेकिन उसके सर पे ईगो आ गया था। फिर भी उसको मारने से पहले उसकी एक इच्छा विष्णु भगवान ने पूरी की कि तुम साल में एक बार केरला अपने किंगडम में आके अपने लोगों से मिल सकते हो, इवन आफ्टर हिज डेथ। मरा नहीं था, जमीन के अंदर धंस गया था। ओके, आगे बात यहाँ तक समझ में बेटा? Yes, ma'am. Any problem till now? No, that's great. Now let's come to the just below. You come below paragraph में आइए। The highlights of Onam are Puklam, floral रंगोली। आप रंगोली बनाते हो ना, आपने देखा होगा दिवाली वगैरह में मम्मी रंगोली बनाती हैं, है ना? Yes, तो ma'am. ओणम फेस्टिवल के समय साउथ इंडिया में लोग रंगोली बनाते हैं, तो वहां पे फूलों की रंगोली बनता है बेटा, फ्लोरल रंगोली। ओके, न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली, घरों में लोगों के लिए कपड़े वगैरह आते हैं, जैसे हम अपनी फेस्टिवल में लाते हैं। ग्रैंड फिश कॉल्ड ओंडस्या, और वहां जैसे आप शादी वगैरह में फिश खाने के लिए जाते हो ना, FEST फिस्ट, भोज, जिसको हम लोग बहु भात या बहु भोज ऐसा करके आपने देखा होगा कार्ड में हिंदी में, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड फीस्ट कॉल्ड ओंडस्या। तो जब साउथ इंडिया में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, तो वहां के लोग एक बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्ट, मतलब साथ में सारे कम्युनिटी मिल के एक ऑर्गेनाइज करते हैं फिश, जहां जाके वो लोग खाते हैं। ओके, और दैट नेम इज ओंडस्या। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ करीज, जैसे मम्मी घर में करी बनाती है, फिश करी, एग करी, लाइक दैट। वहां साउथ इंडिया में भी परिपू, सांभर, रसम, ये सब चटनी वगैरह, करीज वगैरह बनता है। कोटू, पापड़म, प्रधानम, पैसम, राइस, मैंगो, पिकल एंड कोकोनट चटनी। साउथ इंडिया में तो कोकोनट मिलेगा ही, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, तो नारियल की चटनी वो सब बनाई जाती है। आप नीचे में, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, स्नेक बोट वाला पिक्चर शायद पीछे साइड में नहीं है, नहीं दिया इस बार। Okay, the snakeboard races and the famous Kathakali dance attract thousands of tourists to Kerala. Have you seen this? Oh, Srishti को unmute करो. Yes, I don't have any problem, Srishti. Where you are? Srishti. Yes, Srishti, unmute yourself. मैम आपने जो मेरे को अंडरलाइन नहीं हो पा रहा, तो मैम आप पेज नंबर 21 का भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरा स्पेलिंग लिख के भेज दूंगी बेटा, डोंट वरी, that I will Okay. do. I know some of you have joined late, and I want that you should do your work properly. And some of because of mobile they have not joined. Okay, है ना? दो भाई बहन है, तो एक ने क्या होगा, इतने नहीं क्या होगा। I will share all the words. No need to worry, बेटा. Okay. You also do your part in HW. You will write all the spellings, whatever I will send today. Okay. Okay, that's fine now for everyone. Good. Let me see how many of new students have joined. Sanjana is there, Sachi, Sahil, Rishu, Purujit, Paki.
Who is Oppo A71 3GB? प्लीज रीनेम कर लो बेटा, नहीं तो फिर मुझसे छूट जाएगा आपका अटेंडेंस। आई डोंट नो, मेरे क्लास में ओप्पो नहीं पढ़ता। ओप्पो तो भी कोई नाम का बच्चा नहीं आया है, तो ओप्पो सुना था, ओप्पो नहीं सुना है। ओके, दैट्स द जोक पार्ट। सो शुड आई शो यू द स्नेक बोर्ड? चलो हम लोग फायदा उठाते हैं ऑनलाइन क्लास का, आपको मैं दिखाती हूँ स्नेक बोर्ड कैसा होता है। तो फायदा उठाना चाहिए ना ऑनलाइन क्लास का। यस मैम। थोड़ा फायदा लेते हैं, किसी दिन गाना वाना भी बजा के हम लोग सुन लेंगे, मतलब अच्छा वाला गाना जो आपके लिए पढ़ाई के लिए। वेयर इज माय यू? हाँ देखो कितना हंसी आ गया। क्लास में तो सालवी पूरा डांस करती ही रहती है। ओके, गूगल बाबा से थोड़ा हम लोग हेल्प ले लेते हैं ना, यूट्यूब में नहीं आता, गूगल बाबा से हेल्प लेते हैं। स्नेक बोट इमेज, रेस काइंड ड्राइंग पिक्चर। देखो बेटा ऐसे ऐसे बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं और इसका कंपटीशन होता है बेटा, और जो जीतता है ना उसको बहुत अच्छा खासा इनाम मिलता है। दिख रहा है बेटा? है ना? देखो कितना स्पीड में लोग चला रहे हैं जीतने यस के लिए। मैम। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इट्स वेरी फेमस। करने वाले को तो मजा आता ही है, देखने वाले का भी मन खुश हो जाता है। सो वेन एवर यू गेट अ टाइम डू विजिट। अभी तो मैं भी नहीं केरला विजिट की हूँ, तो आप जरूर, आप भी कभी मौका मिले तो जाइएगा अपने मॉम डैड के मैम साथ। मैं भी नहीं गई हूँ। हाँ तो तंग करेंगे पापा मम्मी को, फिर कभी ना कभी तंग करके चले जाएंगे। ओके, हाँ, अरे कोई बात नहीं है। चलो बेटा, अब आ गए। डू यू नो में आ जाता है बेटा। अब यहाँ पे देखो एक टाइगर, अच्छा ये वाला भी थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको इमेज। पहले पुक्कली टाइगर डांस के बारे में सुन लेते हैं। Pukkali tiger dance is a popular feature of Onam celebration, where hundreds of men dressed as tiger dance to the beat of drums. आप देखो टाइगर वाला ड्रेस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा इमेज में पूरा बॉडी पे टाइगर वाला वो स्ट्रिप है। ये भी यस ओनम मैम। के एक जैसे स्नेक बोट रेस होता है, कथकली डांस होता है। कथकली मेन क्या है, क्लासिकल डांस है बेटा केरला का, ठीक है। ओ मैम आई कैन विजिट। अच्छा सूर्यांश जा रहे हो, गुड। वहां से हम लोग के लिए कुछ भी लेते आना, नारियल वगैरह थोड़ा सा। अच्छा हाँ, नारियल तो यहाँ पे मिल जाता है, कुछ अच्छा ही स्पेशल चीज लाना। क्या नारियल लाओगे? जो नहीं मिलता है वो लाना। ओके, तो ये पुक्कली टाइगर डांस है बेटा। आप ड्रेस में ये स्ट्रिप्स में टाइगर जैसा बने रहते हैं, ठीक है। इट टेक्स 4 hours टू पेंट। बॉडी को 4 घंटे लगा के वो पूरा टाइगर जैसा वो पेंट होता है, पेंट करते हैं लोग। डेकोरेट ईच पर्सन टू लुक लाइक अ लायन। द बेस्ट डांसर एंड डेकोरेटेड लायन मैन आर अवार्डेड। यहाँ भी जो बेस्ट लायन और टाइगर दिखेंगे और जो बहुत अच्छा डांस करेंगे उनको प्राइज मिलता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से गूगल बाबा के पास चलते हैं और टाइगर डांस लोग थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं। ये फायदा है ऑनलाइन का बेटा ना, जब मन हो अपना जो पिक्चर देख लो। 40 में होता है टाइगर, टाइगर डांस ऑफ केरला का मुझे इमेज मिल जाएगा। हाँ, टाइगर डांस इन केरला। अरे बाबा, ये तो सचमुच का टाइगर लग रहा था।